یہ یہاں پہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں روز؟ 20-25 یہاں لوگ روز دن نماز پڑھ رہا ہے. اور مدرسہ تو یہی ہے، یہی مدرسہ. اس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 20-25. ٹاسک فورس کے انوسار مدرسوں میں اسلامی شکشا عربی بھاشا میں دی جا رہی ہے. کیا پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ یہ تو عربی اردو پڑھانا ہے. جیشور روڈ پر بنگلہ دیش بارڈر سے 40 کلومیٹر دور ہم ذوالفقار علی صدیقیہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہاں پر 40 کے قریب بچوں کو شکشا دی جاتی ہے اسلامک پدھتی کے انوسار. بنگلہ پڑھو نہ عربی کے پڑھو؟ عربی تو ہے. کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ پڑھاتے عربی پڑھاتے قرآن. مسلم بچے اپنی بھارتیہ جڑوں سے ومکھ ہو رہے ہیں. ٹاسک فورس نے بتایا کہ مدرسوں کا طالبانی کرن ہو رہا ہے. ٹاسک فورس کے مطابق جموں کشمیر میں بھی آتنکواد کے پھیلاؤ سے پہلے مدرسوں کا جال بچھایا گیا تھا. کئی مدرسوں کا اسی پنتھی وچاردھارا کا استعمال کر کے طالبانی کرن کیا گیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلمانوں کے خلاف یدھ کی تیاری کی جا رہی ہے. کون سا مدرسہ ہے یہ؟ مدرسہ فیض العلوم ہاتھیشالہ. کیا آپ کو معلوم ہے کافر کیا ہوتا ہے؟ جی، کافر ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے اور انکار کر دے، اور اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ بھی انکار کر دے، اور قرآن شریف کو نہیں پڑھے اس کو بھی انکار کر دے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں مانتے ایک خدا کو، اس کو کافر کہتے ہیں. تمہارا نام کی؟ محمد شیخ شاہین. کافر کا دے بولے যারা আল্লাহর কথা মানে না এবং নবীর আদেশ মতো চলে না. ওরা আল্লাহর কথা শুনে চলে, নবীর আদেশ মানে, আর কারা নবীর আদেশ মানে না, আল্লাহর কথা শুনে চলে না, কারা সেটা একটু বুঝিয়ে বলো. যারা মুসলমান তারা আল্লাহর কথা শুনে আর নবীদের কথা শুনে, আর যারা কাফের তারা আল্লাহর কথা মানে না, তারা শয়তানের কথা শুনে. काफिर तो जो धर्म को नहीं मानता है मुसलमान से, तो वादा खिलाफ करता है, वही तो काफिर है. काफिर को क्या सजा देनी चाहिए? काफिर की सजा अल्लाह ने खुदा ने खुद मुतय्यन की है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे जहन्नम में रहेगा और वो आग में जलेगा. सांप बिच्छू भी डसेंगे, जिससे कुरान शरीफ या हदीस पाक से ये बातें साबित होती है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा. और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, वहाँ आग है, सांप बिच्छू है और तरह तरह के अजाब हैं, बहुत तरह के सजाएं हैं उसमें. वो हमेशा हमेशा जो ही रहेगा. छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गैर मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी विचार डाले जाते हैं. टास्क फोर्स ने आगाह किया कि इसके भविष्य में भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं. জিহাদ মানে কি? জিহাদ মানে যুদ্ধ করা. কিরকম যুদ্ধ, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ? কাফিরদের সঙ্গে, নবীজিদের দল, মুসলমানদের দল সঙ্গে. जहाँ है तो युद्ध है, घोषणा युद्ध है तो संग्राम है. जिहाद गैर मुस्लिमों से किया जाता है. जिहाद गैर मुस्लिम जो होते हैं उनसे किया जाता है. उसे दीन की दावत दी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात, यानी अल्लाह पर एक खुदा पर ईमान लाने की बात कही जाती है कि एक खुदा पर ईमान लाए. जब वो नहीं लाते हैं ईमान तो फिर उस वक्त जिहाद का हुक्म होता है. कुरान शरीफ की सूरत है सूरतुल बकरा. सूरत का नाम है, सूरत मीन्स चैप्टर, अध्याय. सूरतुल बकरा, बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 216. कुरान शरीफ में सूरतुल बकरा में है कुतिबु अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून. कत्ल करना, काफरों को कत्ल करना. सऊदी अरेबिया में जो कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन है वहां कत्ल के बजाय फाइट, लड़ाई करना है. परंतु आप साधारण तौर आप समझ सकते हो क्या कुतिबुल अलैकुमुल किताल कत्ल शब्द है. मीनिंग जो है क्या काफरों को कत्ल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है. What kind of renaissance it is? If you will kill me, if you will cut my leg, if you will cut my tongue, what kind of renaissance this?
There is no freedom. কন্ডিশন পুট করো, মানি ক্যান নট বি স্পেন্ড ইন মাদ্রাসা। কেন এই মাদ্রাসা থেকে একটি শিশুকে মানুষ বানানোর পরিবর্তে একজন মৌলবাদী মুসলমান বানানো হচ্ছে। তাকে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুসলমান ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই, মুসলমান ছাড়া যাই তুমি করো সব হালাল। এই শিক্ষাটি বন্ধ না হলে শুধু বাংলাদেশ কেন, সব জায়গায় এই ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা হবে। ইউ উইল ফেস দিস প্রবলেম, বাট আই এম ফেসিং ইট টুডে, ইউ উইল ফেস ইট, you or your son will face it very soon. What is the education of madrasa? The Muslim are the superior in the world. If you will convert one non-Muslim, if you will kill non-Muslim, if you will marry one non-Muslim, or if you will rape one non-Muslim, because non-Muslim women and girls are the male ganimat. There is no crime. Heaven will be open for you. This is the education of madrasa. Atrocities on the minorities, atrocities on the indigenous population, atrocities in each and everywhere in my country, created by madrasa people, so-called educated people. पहला कदम ये होना चाहिए कि ये निवेदन होना चाहिए और बहुत ही एकदम दृढ़ निवेदन होना चाहिए कि मदरसों में जिहाद की शिक्षा देना बंद करें, क्योंकि आप जिहाद की शिक्षा देंगे तो ये लड़के निकल के आतंक करेंगे, तो उसके बाद फिर बैकलैश होगा, दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। इससे न किसी आपका भला है न किसी दूसरे का भला है, ये बंद करिए। टास्क फोर्स ने लिखा है कि सीमा के दोनों तरफ मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल ISI द्वारा किया जा सकता है। यहाँ से हथियारों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियां आसानी से की जा सकती हैं। कुछ साल पहले मैं बहराइच से आगे एक नेशनल पार्क में गया था, कतरनिया घाट, नेपाल से सटा हुआ है, और वहां सुनने में आया कि सीमा के बराबर मदरसे और मस्जिद बनते चले जा रहे हैं और वहां माओवादी और ISI के एजेंट मिलते हैं और वो अपने मैप्स और हथियार, पैसे का लेना देना चलता रहता है। ISI वाले, पाकिस्तान वाले, और ये उनके अड्डे हैं, ये उनके सेंटर्स हैं जहां वो जाके तना ले सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और वहां से अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं भारत के खिलाफ। अक्टूबर 8 सन 2001 बांग्लादेश के पूर्वा देलुआ में पूर्णिमा रानी शील का बलात्कार किया गया। ধর্ষণ করছে 11টি মুসলমান পুরুষ ভর দুপুরে। ধর্ষণ করছে কারণ পূর্ণিমা মেয়েটি হিন্দু। পূর্ণিমার মা পাথর কণ্ঠে মিনতি করছেন, বাবারা একসাথে না, একজন একজন হইয়া যাও ওর কাছে। মুসলমানেরা পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেয়নি, পূর্ণিমার মাকেও দেয়নি, 6 বছর বয়সী ছোট বোনটাকেও দেয়নি। दक्षिण शादनपुर बांसकली पुलिस स्टेशन बांग्लादेश, नवंबर 19 सन 2003। इस्लामी दहशतगर्दों ने ठीक आधी रात के बाद तेजेंद्र लाल शील के परिवार के 11 लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इनमें 4 दिन की एक बच्ची समेत 8 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। Law enforcing agencies, military and fundamentalist group commit systematic atrocities, human rights violation against the indigenous people with complete impunity. फरवरी 17 सन 2002 द डेली जनकंठ ने बांग्लादेश में एक सर्वे कराया। इसके मुताबिक बांग्लादेश में किए जा रहे बलात्कारों में तकरीबन 99% बलात्कार के शिकार अल्पसंख्यक हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक 10% से भी कम है। भोला जिला में कहा जाता है कि एक हिंदू नारी नहीं है 60 से 70 तक जिसका बलात्कार नहीं हुआ। ऐसे जगह जगह में भोला में हुआ, मीरेर सराय चिटगांव में हुआ, उल्लापाड़ा पाबना में हुआ, ऐसे जगह जगह में हुआ जहां पर लगातार हिंदुओं का कत्ल किया गया, हिंदुओं का मंदिर नष्ट किया गया, वहां गाय काटा गया, वहां पर जो प्रतिमा हम पूजा करते थे, पूजा करते समय उसको सर तोड़ दिया गया। इस तरह का अत्याचार होता रहता है। Rape they are using as a tool to clean the minorities from Bangladesh. They get out of this country. तारा बोले जा, either you become Islam, take Islam and get out of this country. हिंदू मंदिरों को तोड़ना,
हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमले करना, उन्हें जिंदा जला देना, उनके साथ बलात्कार करना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, लूट मार करना, अल्पसंख्यक कर वसूलना और उनके साथ